وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मेरी सारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب
وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنوں نے فلاح پائی وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو لغو سے منہ موڑتے ہیں. یہ سورت مکی ہے. ان دنوں نازل ہوئی جب مسلمان انتہائی ظلم و ستم کا شکار تھے اور قریش اقتدار اور مال و دولت پر قابض تھے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا تصور ہی دوسرا دے دیا اور اگلی آیات میں کامیاب لوگوں کی صفات کا ذکر کیا. مومن کامیاب ہوں گے. کون سے مومن؟ مومنوں کی صفات آگے آ رہی ہیں. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں. نماز ہی اصل دین ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے. باقی تمام عبادتیں اس جیسی نہیں ہیں. زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، روزے وہ بھی سال میں 1 دفعہ، حج زندگی میں 1 دفعہ. تو نماز ہی ایک ایسی عبادت رہ جاتی ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہر وقت اور ہر دن اس پہ فرض ہوتی ہے. تو نماز میں خشوع لازمی ہے اور خشوع جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ نماز کو بڑے سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے. جب تک نماز کو سکون اور اطمینان سے ادا نہ کیا جائے خشوع پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہو تو نماز کے لیے اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی فارغ کر لیں، ذہنی طور پر بھی فارغ کر لیں، کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں 1000 کام گھسے ہوں گے تو ظاہر ہے اللہ کی طرف اس طرح توجہ نہیں ہو سکے گی. اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کریں کہ کسی خاموشی کی جگہ پر نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو سامنے ٹی وی چل رہا ہو تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک اور طریقہ خشوع پیدا کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھیں. اس سے بھی آپ کی توجہ جو ہوتی ہے وہ کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے. تو وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر نماز کا ترجمہ سیکھیے اور نماز کو پورے دل اور دماغ کے ساتھ ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری سوچ تو کہیں اور جا رہی ہو اور ہم اٹھک بیٹھک ہم نے شروع کی ہوئی. دل دماغ سب نماز کے اندر شریک ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میں اپنے رب سے کیا مانگ رہی ہوں. یہ چیزیں انسان کے اندر خشوع پیدا کرتی ہیں. اور وہ لوگ لغو سے منہ موڑتے ہیں اور وہ لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. لغو سے منہ موڑنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر زکوٰۃ سے بھی پہلے کیا. لغو کیا چیز ہے؟ جن چیزوں کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے. لغو ہی سے منہ موڑنے کے ساتھ آپ کا مال بچتا ہے تاکہ آپ اسے آخرت کے لیے خرچ کر سکیں. آپ کا وقت بچتا ہے، آپ کی صلاحیتیں بچتی ہیں. ورنہ لغو پر چلتے چلتے انسان اپنا ساری صلاحیتیں، مال، وقت، عمر اسی دنیا میں برباد کر دیتا ہے اور مرتے وقت اس کو وہ پھر اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، میں کوئی نیکیاں کر لیتا. اور وہ لوگ لغو سے منہ موڑتے ہیں. تو لہٰذا ایسی فالتو چیزیں جن کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے ان سے منہ موڑنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کا ذکر کرنے سے پہلے اس کا ذکر کیا. اور وہ لوگ لغو سے منہ موڑتے ہیں اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں اپنی بیویوں پر یا جو ان کی لونڈیاں ہوتی ہیں تو وہ ملامت زدہ نہیں ہیں. بہت سے لوگ لونڈیوں کے بارے میں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. اصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لونڈیوں کے آنے کا ذریعہ صرف ایک ہے کہ کوئی میدان جنگ میں کسی خاتون کو گرفتار کر لیا جائے تو لیکن اس خاتون کے ساتھ اسی وقت تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں. اور نہ صرف آج کل کوئی فوجی خود جنگ میں عورتوں سے
फायदा उठाते हैं, बल्कि अपने दूसरे साथियों को भी इस मौके से फायदा उठाने की दावत देते हैं। अगर किसी मुसलमान फौजी ने ये हरकत की तो उसने दो बड़े जराइम किए, एक जना और दूसरा माले गनीमत में नाजायज तसर्रुफ। इस्लाम ने जो हमें असूल दिया है वो ये है कि तमाम माल और लौंडी औरतें और मर्द जो गिरफ्तार हों वो सारे एक जगह इकट्ठे किए जाएं और एक बाकायदा अथॉरिटी उनको बाकी फौजियों में तकसीम करे, और तकसीम करने के बाद भी जिस मालिक के हिस्से में वो लौंडी आएगी वो मालिक उससे ताल्लुकात कायम कर सकता है। लेकिन एक हैज के बाद जब ये पता चल जाए कि इसके पेट में किसी और का बच्चा नहीं है, इसके बगैर किसी लौंडी से ताल्लुक कायम करने की इजाजत नहीं होगी, और सिर्फ उसे इजाजत होगी जिसको वो लौंडी बाज़ाब्ता तौर पर मजाज अथॉरिटी ने दी। तो ऐसे लोग मलामत नहीं किए जाएंगे। तो जो इसके अलावा कोई और रास्ता तलाश करें तो ऐसे लोग तो हद से बढ़ने वाले हैं, यानी बीवियों के अलावा या इस लौंडियों के अलावा। तो ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले हैं, और मोमिन अपनी अमानतों और अपने वादों का लिहाज करने वाले होते हैं, उसका पास उसकी निगरानी करने वाले होते हैं, और वो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ऐसे ही लोग वारिस होंगे। अब मोमिनों की सिफात का आगाज भी नमाज से हुआ, इख्तिताम भी नमाज पर हुआ। आगाज में था वो अपनी नमाजों में आजिज़ी करते हैं, और इख्तिताम हुआ नमाजों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत करने से क्या मुराद है? पांचों नमाजें अदा करते हैं, औकात का ख्याल रखते हैं, आदाब का ध्यान करते हैं, पाकी और दूसरे जो आदाब हैं उन सब का इंतजाम करते हैं। ऐसे ही लोग वारिस हैं जो लोग फिर जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, फिर हमने उसको एक महफूज जगह पे नुतफा बना कर रखा, फिर हमने नुतफा को अलका बना दिया, गोश्त का खून का लोथड़ा, फिर हमने लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी पर हड्डियां चढ़ा दी, फिर बोटी को हड्डी बना दिया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर हमने इसे एक नई ही मखलूक बनाकर पैदा कर दिया। एक नुतफे को अगर आप सामने रखें और एक इंसान को सामने रखें, कौन यकीन कर सकता है कि ये वही नुतफा एक इंसान की शक्ल में कैसे डल गया, जब तक के ये सारे प्रोसीजर से इंसान वाकिफ ना हो। फिर हमने उसको एक नई मखलूक बनाकर पैदा कर दिया। तो अल्लाह ताला बहुत बरकत वाला है, जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। फिर इसके बाद तुम मर जाओगे, फिर इसके बाद तुम्हें क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान तय दर तय पैदा किए हैं, और हम अपनी मखलूक से गाफिल नहीं कि मखलूक तो पैदा करते चले जाएं और उसके रिज़्क़ का इंतजाम न करें। और हमने मखलूक के रिज़्क़ के लिए आसमान से पानी एक अंदाजे के साथ नाजिल किया, हमने उसे जमीन में ठहरा दिया। ये पानी तकरीबन जमीन के 69% हिस्से को घेरे हुए है, और इसी पानी के साथ फिर बारिश होती है, और हम उसके ले जाने पर भी कादिर हैं। अगर अल्लाह ताला इससे ज्यादा जगह पर पानी को स्टोर कर देते तो इंसानों को रहने की जगह ना मिलती, ज़राअत के लिए रकबा ना बचता, और अगर कम रकबे पर पानी स्टोर करते तो इंसान की जरूरियात के लिए नाकाफी हो जाता, और हम जब चाहें इस पानी को ले जा सकते हैं। हमने तुम्हारे लिए इस पानी से खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए, तुम्हारे लिए इसमें बहुत से फल हैं और उनमें से तुम खाते भी हो। और एक दरख्त जो तूरे सीना से उगता है, उसमें वो रोगन उगाता है और वो खाने वालों के लिए सालन का काम देता है। ये दरख्त जो है जैतून का है, जिसको अरब लोग सालन के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे और चर्बी के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। और तुम्हारे लिए चौपाओं में इबरत है, हम तुम्हें पिलाते हैं उससे जो उनके पेटों में होता है, और तुम्हारे लिए उसमें बहुत से फायदे हैं, और उसमें से तुम खा भी लेते हो। गोबर और खून के दरमियान में से सफेद रंग का दूध तुम्हारे लिए पैदा करते हैं, जिसमें न गोबर की बदबू होती है, न खून का रंग होता है, और इंतहाई खुशगवार जायके वाला होता है। और तुम इनसे बहुत से फायदे उठाते हो, और जब चाहो उन्हें ज़िबा करके उनका गोश्त भी खा लेते हो। और तुम जानवरों पर और कश्ती पर सवार किए जाते हो। और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। हजरत नूह ने कहा है, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तमाम अंबिया की तरह हजरत नूह की दावत की बुनियाद भी तौहीद ही थी।
ہر نبی جب بھی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے اس کا سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے احکامات آتے ہیں، اور جب انسان کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو ان احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے دن ہی حکم آ جاتا کہ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، لوگ کبھی باز نہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کر دیا، اور پھر جب وہ تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر ایک حکم آتا تھا اور صحابہ عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اس کو لیڈرشپ چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک فرشتہ نازل کر دیتا۔ ہم نے اس کے بارے میں اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنا، یہ تو ایک آدمی ہی ہے، اور اس کو یہ تو مجنون ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، تو اس کا انتظار کرو ایک وقت تک۔ حضرت نوح نے کہا ہے میرے رب میری مدد کر دے اس وجہ سے جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ حضرت نوح انتہائی جان فشانی کے ساتھ انتھک طریقے سے 950 سال تک قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، جبکہ ایمان لانے والوں کی تعداد 80 سے زائد نہ تھی، اور باقی سارے لوگ ضدی اور ہٹ درم، حضرت نوح کو تکلیف دینے والے اور مذاق کرنے والے تھے۔ حضرت نوح نے پھر اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری مدد کر، اور یہ دعا بھی حضرت نوح نے تب مانگی جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اب اور کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نبی اپنی قوم کے لیے کس حد تک خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، تب حضرت نوح نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد کر اس وجہ سے جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ تو ہم نے حضرت نوح کو وحی کی کہ تم ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، تو جب ہمارا حکم آ جائے گا، تنور ابلنے لگ جائے گا، تو تم اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے مذکر اور مؤنث کو بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی، اس کی کئی منزلیں تھیں، نچلی والی منزل میں جانور تھے، اس کے علاوہ چرند پرند کو بھی سوار کر لیا گیا، اور سب سے اوپر والی منزل میں انسان تھے، وہ والے انسان جو کہ حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو اس لیے سوار کرایا گیا تھا تاکہ ان کی جو نسل ہے وہ باقی رہ جائے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، مگر جس کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، وہ غرق کیے جائیں گے۔ حضرت نوح کے گھر والوں میں سے باقی تو سب لوگ ایمان لائے تھے، ہاں ان کی ایک بیوی اور اسی بیوی سے ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ تو جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی، اور یہ بھی دعائیں کرنا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ تعالی ہمیں تو برکت والی جگہ اتارنا، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہمیں تو آزمانا ہی تھا، یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، ہم انبیاء بیچ کر سب کا امتحان کر لیتے ہیں، نبی پر کا بھی اور اس پر ایمان لانے والوں کا بھی۔ نبی کا امتحان اور مومنوں کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک صبر و ثبات سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ قوم کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کو کیا جواب دیتی ہے، اور پھر عذاب کے بعد آنے والی نسلوں کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اس عذاب سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کر دیا، ان کے اندر میں سے ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیا میں خوشحالی بھی دی تھی، وہ لوگ کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، وہ اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور ویسا ہی پانی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو تم تو بڑے بے وقوف ہوگے، بڑے خسارے میں ہوگے۔ وہ تمہیں یہ وعدے دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، تم نکالے جاؤ گے۔ یہ بات تو بڑی عقل سے دور ہے۔
जिस चीज का तुम्हें वादा दिया जा रहा है, यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि इंसान मर के मट्टी हो जाए और मरने और फिर दोबारा जिंदा उसको कर दिया जाए। ये तो हमारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी है। हम मरते हैं, हम जिंदा होते हैं और हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। आपने देखा हर नबी पर पहला एतराज यही होता है कि वो एक हमारे जैसा इंसान है। या तो उस पे ये एतराज कर दिया जाता है वो जी लीडर बनना चाहता है, या ये एतराज कर दिया जाता है कि ये तो हमारी तरह खाता है और हमारी तरह पीता है, या ये तो पागल हो गया है, इसकी तो मत मारी गई है, ये तो इस पर तो जादू हो गया है। तो और इसी तरह क़यामत के से इनकार इन अल्फाज में किया जाता है कि ये हमारी दुनिया की जिंदगी है, हम मरते हैं, हम जिंदा होते हैं, हम दोबारा कभी भी नहीं उठाए जाएंगे। आखिरत को न मानने वाले हमेशा से कहते हैं हमने आज तक किसी को जिंदा होकर दोबारा आते हुए न देखा। हालांकि अल्लाह ताला ने ये वादा कतई नहीं किया कि इस दुनिया में जिंदा होंगे। अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि क़यामत का दिन आएगा जिस दिन हम दोबारा लोगों को जिंदा करेंगे। ये एक आदमी है जिसने अल्लाह पे झूठ कर लिया और हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत से मालूम होता है कि ये लोग अल्लाह के मुनकर न थे। असल बात है अल्लाह की जात पर ईमान हर फर्द, हर शख्स बादा-ए-लफ्ज़ की वजह से अल्लाह पे ईमान लाता है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान हो। फर्क वहां पर पड़ता है कि ये लोग जब अल्लाह की इबादत करने लगते हैं तो इस इबादत में अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लगते हैं। न सिर्फ ये लोग बल्कि बहुत से मुसलमान भी इस इबादत में शिरक करने लग जाते हैं। वो नबी कहने लगे ए मेरे रब मेरी मदद कर इस वजह से जो मुझे जुठला रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा थोड़े अरसे बाद ये लोग नादिम हो जाएंगे तो उन्हें चीखने आ लिया, तो हमने उन्हें खसो खशाक बना दिया, तो जालिम कौम के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी हो। फिर हमने उनके बाद कई और कौमें पैदा कर दी। कोई भी कौम ना अपने वक्त से पहले खत्म हो सकती है और ना उसके बाद ठहर सकती है। फिर उसके बाद हमने अपने रसूलों को मुतवातर भेजा। जब कभी किसी उम्मत के पास उसका रसूल आया उन्होंने उसको जुठला दिया, तो हम एक कौम के बाद दूसरी कौम को हिलाक करते रहे, यहाँ तक कि हमने उन्हें अफसाने बना दिया। तो ऐसे लोगों पर फिटकार हो, अल्लाह की रहमत से दूरी हो जो ईमान नहीं लाते। आदे उला के बाद हजरत मूसा के जमाने तक बहुत से अंबिया भेजे गए। हजरत साले, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ और कई और अंबिया। इसके अलावा जिन अंबिया का जिक्र कुरान में नहीं मिलता वो इससे बहुत ज्यादा हैं। तमाम अंबिया की कौमों ने उन्हें झुठला दिया, तो हम भी फिर उनको बर्बाद करते ही रहे और हमने उन्हें किस्से कहानियां बना दिया। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को मोजज़े और रोशन दलील देकर फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो तो बड़े सरकश लोग थे। वो कहने लगे क्या हम अपने जैसे दो इंसानों पर ईमान ले आए? आज भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानने को तैयार नहीं है। ये किन लोगों का काम था? जो पहले अंबिया के साथ का इनकार करने वाले थे। शैतान ने दिल में डाल दिया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कह दे वो तो नऊज़ुबिल्लाह उनकी तौहीन करता है। हालांकि ये काम कुफ्फार का था कि वो रसूल को मानने से इनकार कर देते थे इस बिना पर कि वो एक उन जैसा इंसान क्यों है। रसूल हमेशा इंसान ही होता है, उसी कौम में से होता है, वही जबान बोलता है, वही आदतें, वही रस्म और रिवाज, वो सारों के दरमियान रहता है ताकि कोई ये न कह सके तुम्हें हमारे मसाइल का अंदाजा ही नहीं है, तुम कहां से हमें नसीहत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हम दो आदमियों के लिए ईमान क्यों लाएं जो कि हमारे ही जैसे हैं, जबकि उनकी कौम हमारी गुलाम है। तो उन्होंने उनको झुठला दिया, तो वो हिलाक होने वालों में से हो गए। और हमने मूसा को किताब अता की थी ताकि वो हदायत पाएं, और हमने इब्ने मरियम और उसकी माँ को एक निशानी बना दिया, और हमने उन दोनों को एक टीले पर जगह दी जो कि बड़ी इत्मीनान वाली थी, और वहां बहते हुए पानी का चश्मा भी मौजूद था। ए रसूलो पाकीज़ा चीजों से खाओ, नेक अमल करो, मैं जो तुम अमल कर रहे हो उन्हें जानता हूँ, और ये तमाम तुम्हारा गिरोह एक ही गिरोह है।
अंबिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। ये तमाम अंबिया एक ही दीन लेकर, एक ही हस्ती खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ से मबूस किए जाते रहे। ये तुम्हारा गिरोह एक ही गिरोह है और मैं तुम्हारा रब हूं, तो मेरे से डरो। तो इन लोगों ने अपने काम को टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर गिरोह के पास जो कुछ है वो इसी में मगन है, तो इनको इनकी मदहोशी में पड़ा रहने दें। क्या वो ख्याल करते हैं कि हम उन्हें जो माल और बेटे दे रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम उनके लिए भलाइयां देने में जल्दी कर रहे हैं, बल्कि वो शऊर नहीं रखते। कुफार का ख्याल ये है कि उनको जो अल्लाह ताला माल और औलाद दे रहा है, शायद अल्लाह उनसे बड़ा राजी है और इस वजह से उन्हें ये सारा कुछ मिल रहा है। असल बात है उन्हें इस बात का शऊर नहीं। अल्लाह की नेमतें जिन पर होती हैं वो उनकी सिफात ये होती हैं। बेशक वो लोग जो अपने रब के डर से डरते हैं और जो अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं और वो लोग जो अपने रब के साथ शरीक नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जिन पर रब की रहमत हो रही होती है। कौन सी रहमत? हदायत की रहमत। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ देते हैं। तो ये लोग अल्लाह के डर से डर रहे होते हैं, अल्लाह की आयत पर ईमान ला रहे होते हैं, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक, अल्लाह की इबादत में किसी चीज को शरीक नहीं कर रहे होते, और वो लोग देते हैं जो वो देते हैं और उनके दिल डर रहे होते हैं कि उन्हें अपने रब की तरफ लौटना है। हजरत आयशा कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में सवाल किया, क्या ये वो लोग हैं जो कि शराब पीते हैं और चोरियां करते हैं और फिर डरते हैं? आपने फरमाया, नहीं ए सिद्दीक की बेटी, ये वो लोग हैं जो रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदकात देते हैं और डर रहे होते हैं कहीं ये अल्लाह के यहाँ कबूल न हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत इब्राहिम और इस्माइल सारी जिंदगी कुर्बानियां देकर जब बैतुल्लाह बनाते हैं तो कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो ये वो लोग हैं जो रोजे भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सदकात भी देते हैं और डरते हैं कि ऐसा ना हो कहीं इन्हें अल्लाह कबूल ना करे। असल बात है वो अल्लाह कबूल कर ले तो हमारी मेहनतों की वो कदरदानी करता है, लेकिन अगर वो अल्लाह कबूल न करे तो हमारी तो सारी मेहनत जाया चली गई। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान नेकी करे और उसके बाद अल्लाह से डरता रहे। दिल में अगर तकब्बुर आ गया तो ये तकब्बुर सारी नेकियों को बिल्कुल जीरो कर देता है। वो लोग नेकियों में आगे बढ़ते हैं और वो उसके लिए सब एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं, और हम किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। दीनी अहकामात ऐसे नहीं जो बजा लाने मुश्किल हों, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानी फितरत के मुताबिक ही फर्ज किया है। फिर गैर मामूली हालात में अहकाम तब्दील भी हो जाते हैं, जैसे मुसाफिर और मरीज नमाज। मुसाफिर नमाज कसर कर सकता है, मरीज नमाज बैठकर या लेटकर पढ़ सकता है। इसी तरह जो शख्स बीमार हो वो रोजा छोड़ सकता है, बाद में उसकी कज़ा दे सकता है। और हमारे पास एक किताब है जिसमें जो हक के साथ बोलती है और उन पर जुल्म न किया जाएगा। ये किताब कौन सी है? नामा अमाल, जो अल्लाह ताला हर एक का तैयार करा रहे हैं, बल्कि उनके दिल इससे गाफिल में हैं कयामत के दिन से, और उनके लिए ऐसे अमल हैं जो कि वो अमल कर रहे हैं, ऐसे कई बुरे अमाल हैं जो कि वो अमल कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम इनके अय्याश लोगों को अजाब में पकड़ लेते हैं उस वक़्त वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। आज के दिन चीखो ना चिल्लाओ, तुम्हें आज हमारी तरफ से कोई मदद नहीं दी जाएगी। मेरी आयत तुम पर तिलावत की जाती थी तो तुम अपनी एड़ियों पर उल्टे पांव लौट जाते थे, तकब्बर करते हुए, इन आयत को कहानियां और अफसाना समझते हुए फजूल बकवास किया करते थे। क्या इन्होंने इस कलाम पे गौर नहीं किया? कौन से कलाम पर? जो अल्लाह ताला ने हदायत का कलाम नाजिल किया है, या उनके पास ऐसी बात आई है जो उनके आबा अजदाद के पास नहीं आई थी, या उन्होंने अपने रसूलों को नहीं पहचाना तो वो उनका इनकार कर रहे हैं। अब कौल कौन सा आया है? कौल वही आया है जो हमारी फितरत में है, तौहीद, और उसके बाद तमाम नेकी
के अहकामात और बुराई से रोकना। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में नेकी भी लिख दी है, उसकी फितरत में बुराई भी लिख दी है, और ये इस हद तक है, एक 2 साल के बच्चे को आप पूछें तो 2 साल के बच्चे को भी इल्म होता है कि नेकी क्या होती है और गलत बुराई क्या होती है। बाकी इंसान अंधा खुद बन जाए तो अलहदा बात है, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना तो उस रसूल का वो इनकार कर रहे हैं, हालांकि वो रसूल उनके अंदर 40 साल जिंदगी गुजारते रहे और ये लोग उन्हें सादिक और अमीन कहते थे और उनकी बड़ी इज्जत करते थे। आज वो अल्लाह का पैगाम देने लग गए हैं तो आज उनको उस पे एतराज करने लग गए हैं, या वो अपने रसूल को नहीं पहचानते तो वो उसका इनकार करते हैं, या वो कहते हैं ये मजनू हो गया है, बल्कि वो हक लेकर आए हैं और अक्सर उनके हक को नापसंद करते हैं। काफिर आप पर जुनून का इल्जाम भी लगाते, मगर खुद उनके अपने दिल गवाही देते कि ऐसा शख्स मजनू नहीं हो सकता। उनके जुनून पर हजारों अक्लमंदियां कुर्बान। वलीद बिन मुगीरा जो कुफार का सरदार था, वो खुद अपनी मजलिस में कहता था कि हमने मजनू देखे हैं जो उल्टी सीधी हरकत वो करते हैं, ये मोहम्मद वैसे नहीं है, बल्कि आप उनके पास हक लेकर आए हैं और उनके अक्सर हक को नापसंद करते हैं, और अगर हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता, और जो इनके अंदर हैं। अगर अल्लाह ताला के अहकामात लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नाजिल हों तो इस सूरत में फिर अल्लाह तो बादशाह न हुआ, बल्कि अल्लाह तो कठपुतली हुक्मरान हुआ जो कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करे। वैसे भी लोगों के चूंकि मफादात और ख्वाहिशात मुख्तलिफ होती हैं, चुनांचे अगर हक ख्वाहिशात का ताबे हो तो जमीन फसाद से भर जाए, बल्कि ये फसाद जमीन से होता हुआ आसमान तक पहुंच जाए, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात और मफादात एक दूसरे से टकरा भी रहे होते हैं। और अगर हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करे तो जमीन और आसमान और जो उनके अंदर हैं उनमें फसाद हो जाए। बल्कि हम इनके पास इनका जिक्र लेकर आए हैं तो वो अपने ही जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। या ए नबी, तो इनसे खर्च मांगता है और तेरे रब का खर्च ही बेहतर है। अल्लाह ताला तंजन कह रहे हैं, कभी किसी नबी ने आज तक खराज नहीं मांगा, आज तक उजरत नहीं मांगी, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। और ए नबी, आप उन्हें सीधे रास्ते की तरफ दावत देते हैं, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो इस सीधे रास्ते से हट रहे हैं। और अगर हम इन पर रहम कर दें और इनकी तकलीफ को दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी में ही और ज्यादा बहकने लग जाएंगे। इशारा है उस शदीद कहत की तरफ जो आपकी दुआ से आप अहले मक्का पर नाजिल हुआ। हालत यहाँ तक पहुंची कि मुर्दार खाने की नौबत आ गई। कहत साली से जब ये नौबत आ गई तो अबू सुफियान आपके पास आया, कराबतदारी का वास्ता देकर दरखास्त की कि अल्लाह से दुआ करो कहत टल जाए। कुरैश को ये मालूम हो गया कि अल्लाह ही ये कहत दूर कर सकता है और आपकी दुआ से ही दूर होगा, और वाकई वो कहत दूर हो गया। मगर बदबख्तों को अल्लाह के आगे सर झुकाने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की फिर भी तौफीक न हुई, और हमने तो उनको अजाब से पकड़ लिया था तो वो अपने रब के सामने ना तो झुके और ना उन्होंने आहोजारी की, यहाँ तक कि हमने उन पर शदीद अब अजाब का दरवाजा खोल दिया और उस वक़्त वो उससे मायूस होने लगे। एक अजाब तो वो था जो यही कहत का था, इसके अलावा ये शदीद अजाब से मुराद जंगे बदर है जो कि इन कुफार के लिए यौमुल फुरकान बन गया था। यहाँ तक कि हमने उनके ऊपर शदीद अजाब का दरवाजा खोल दिया तो उस वक़्त ये अल्लाह की रहमत से मायूस होने लग पड़े। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح